Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are going to solve the example that is given on page number 203 by the book of S.A. Bhatti Saab. Here we are going to talk about simultaneous system of differential equations. In the yesterday's lecture, I talked about a second order differential equation, and in that we made a pair of differential equations by the substitution y dash is equals to z. In this case, they have given us two first order ODEs. Y dash is some function of f and z dash is some function of xyz. And these are the initial conditions. This is the generic form, and using of the classical RK method of order 4, they have mentioned this as I have already told you people. Yn plus 1 and zn plus 1, that is equals to this expression. And the values of k1 and up till k4 and then L1 up till L4 are mentioned over here, as you can see in the slide. Here you can see that all these values have been mentioned in this form. Okay. Now, this I have already told you people that this n plus 1 is for the iteration. Like if it is mentioned that you have to find your solution at, for example, y of 0.3, and the initial condition is given at x naught is equals to 0. If x naught is equals to 0 and you have to find your solution at x naught is equals to 0.3, then, and if they haven't mentioned any value of h, then of course it would be, then the value of h would be h is equals to 0.3 minus 0, that is h is equals to 0.3. But if they mention that the step size h is equals to 0.1, then of course you have to switch towards 0 to 0.1, first iteration 0.1. At y1 it will give you the value of y of 0.1. Then you have to repeat the procedure and get the value of 0.2 at which would be y2, and then for 0.3 you will be getting this y3. It means that you have to repeat this whole procedure 3 times, and then you will get your desired answer. Okay, so we are going to solve this example that is mentioned in your book on page number let me check. Yes, this is given on page number 204. You can see that you have to use the classical RK method to solve this system of ODEs, simultaneous system of ODEs. For x is equals to 0, 0.1 step size, and you have to go till 0.5. It means that there are 5 iterations that you have to perform, because if you will get the value of y1, it means it is the solution y of 0.1. If you are finding the iteration y2, it means you have got the solution y or z at 0.2, then y3, then y4, then y5. And at the 5th iteration y5, you will be getting the final solution y of 0.5. And similarly for this z as well. It means that the 8 constants that are related with these two simultaneous differential equations, you have to repeat this procedure 5 times. Okay, so they have mentioned this initial condition that y naught and z naught, they are equals to 1 when x naught is equals to 0. Okay, so this is the initial condition, and this is the step size 0.1 that they have mentioned, starting from 0 and ending at 0.5. And this is the sequence that you are going to follow. For the first iteration, they haven't mentioned it, but they have given us the table in the end. They are just going to calculate the values of the first iteration, all these 8 constants for first iteration, and you have to repeat this procedure 5 times to get your own answer, and try to tally it with the values that have been mentioned in the table below. Okay,
सो K1 ऑफ कोर्स, अब यहाँ पे आप देखें वो जो कल हम लोगों ने OD बनाई थी उसमें y डबल डैश था हमारे पास, हमने एक फंक्शन उसको लिया था और एक जो हमने सपोज किया था कि लेट y डैश इज इक्वल टू z, वो जो राइट साइड पे z था वो हमारा दूसरा फंक्शन था। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई सेकेंड ऑर्डर OD नहीं है, यहाँ पे दोनों दो फर्स्ट ऑर्डर ODs हैं। तो एक फंक्शन हमारे पास ये है x प्लस वाई जी, जिसको आप कैपिटल F या कैपिटल G का नाम दे दें, जैसे इन्होंने तो यहाँ पे F और G स्मॉल लिया हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो योर नोट्स तो देयर इज़ नथिंग, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन। दिस विल बी रिलेटेड टू द K1 values, this function, and this function will be related to the values corresponding to L1. Okay, so we have they have started this K1 is equal to h into f of x y z. अब h जो है यहाँ पे 0.1 है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इंटू जी, तो x नॉट प्लस वाई नॉट इंटू जी नॉट। ओके, तो y नॉट भी हमारे पास 1 है। सो हेयर दे हैव मेंशन्ड ऑल दीज वैल्यूज, पुट इन दीज वैल्यूज, x नॉट 0 है प्लस y नॉट इंटू जी, वाई नॉट भी 1 है और z नॉट भी 1 है। बाय सब्सटीट्यूशन दीज वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K1। अब चूंकि L1 जो है वो L1 क्या है h इंटू जी ऑफ एक्स वाई जी, दिस इज द फंक्शन वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब नाउ यू हैव टू चेक, ये देखें ये एक्स नॉट स्क्वेयर नहीं, ये वाई स्क्वेयर है। 0.1 h की वैल्यू आ गई और वाई स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 1 है ना, इसलिए 1 इंटू 1 है, प्लस एक्स नॉट नहीं है, दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज वाई नॉट स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे एंड प्लस जी नॉट स्क्वेयर, जी की वैल्यू भी 1 है तो प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 0.2। सिमिलरली दे हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ K2 h इंटू एफ ऑफ, अब यहाँ पे आपको पता है स्टेप साइज इंक्रीज करता है, x प्लस h बाई 2, y प्लस K1 बाई 2 एंड z प्लस L1 बाई 2। K1 you have calculated, L1 you have calculated. Okay, so by inserting, सबसे पहले आप क्या करो कि x जो है यहाँ पे आपको पता है वो 0 है, h जो आपको पता है वो 0.1 है, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y जो है आपके पास y नॉट वो 1 है, जो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे गिवन है y1, और K1 भी आपके पास कंप्यूटेड है 0.1, और यहाँ पे z जो है आपको पता है वो 1 है, और L1 भी आपके पास कंप्यूटेड है और दैट इज़ योर वैल्यू 0.2। इन सब वैल्यूज़ को पहले यहाँ पे फंक्शन में बना लिया करें और फिर उसके बाद सिंपली जो आपका फंक्शन है x प्लस वाई इसमें इंसर्ट करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू। एक चीज़ मैं आपको एक मेंशन करती चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप, ये तो अभी फर्स्ट आइटरेशन चल रही है ना, जब आप सेकेंड आइटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये x नॉट है, ये x नॉट नहीं होगा, ये आपका x1 होगा, ठीक है, और ये आपका y1 होगा और ये आपका z1 होगा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, प्लीज़ ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये अभी यहाँ पे क्योंकि हमारा फर्स्ट आइटरेशन है इसलिए हम लोग यहाँ पे x नॉट, y नॉट एंड z नॉट लेके चल रहे हैं। जब हमारी आइटरेशन इंक्रीज करेगी तो दे विल बी x1, y1 एंड z1। ओके, चलें। Similarly, they have computed the values of L2 and their function over here is y square plus z square. So they have put the values and then they have computed this. Similarly, they have computed the value of K3 and then L3, then K4, ये फाइनल यहाँ पे एंड हो जाएगा। K4 के h इंटू एफ ऑफ x नॉट प्लस h, y नॉट प्लस K3 एंड z नॉट प्लस L3, ठीक है। x नॉट प्लस h जो h है वो x नॉट यहाँ पे 0 है, h की वैल्यू 0.1, y नॉट 1 था और K3 की वैल्यू दे हैव कंप्यूटेड 0.1233, तो जिसमें 1 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, और z नॉट आपके पास 1 था, L3 की वैल्यू ये थी तो ये 1.2369 ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो f का फंक्शन था वो क्या था, x प्लस वाई इंटू जी। Put in the values and get this result. Similarly, they have mentioned this. L4 की वैल्यू कैसे आएगी, h इंटू जी ऑफ x प्लस h, यही भी यहाँ पे एंड हो जाएगा, y नॉट प्लस K3 एंड देन z नॉट प्लस L3। h स्टेप साइज 0.1 is mentioned
एक्स नॉट प्लस एच, वाई नॉट प्लस के थ्री एंड जी नॉट प्लस एल थ्री की पहले वैल्यूज़ निकालें, वो यही वैल्यूज़ हैं 0.1 दिस एंड दिस, एंड देन वाई स्क्वायर, यहाँ पे अब ये करेक्ट है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर ये वाली वैल्यू होगी प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, एंड देन दिस वंस यू हैव कंप्यूटेड ऑल दिस कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे ये इसको एक्सप्रेशन को पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये इसको सेपरेटली डील करते हैं, के को 1/6 के साथ करते हैं और फिर फाइनल इसको प्लस कर देते हैं, और एल को भी इन्होंने एक्सप्रेशन को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है। आप बेशक इस तरीके से मत चलें, वो जो आपका फाइनल फार्मूला है यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 इंटू ऑल दोज वैल्यूज़, वो जो k1 प्लस 2 इंटू k2 प्लस k3 प्लस k4, वो सारी वैल्यूज़ डालने के बाद they have taken out the value of y1 and similarly they have taken the value of z1। अच्छा, अब ये चीज़ का ख्याल रखें, ये जो y1 आई है फर्स्ट आइटरेशन, दिस इज y at .1, ये सोल्यूशन जो आपको दिया है ये .1 पे दिया है, ठीक है। इसी तरह ही अब दे हैव कंप्यूटेड ये तो y1 और z1 इसकी वैल्यू निकली। इसी तरह अब आप ये आइटरेशन दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ पे अब आपके पास y2 आएगा और z2 आएगा फाइनल, और जब वो वैल्यूज आएंगी तो 0.2 पे आपके पास सोल्यूशन ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। एंड सिंस दे हैव मेंशन्ड दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 0.5, तो इट मीन्स विद द स्टेप साइज ऑफ 0.1 इट मीन्स दैट यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर 5 टाइम्स। ये तो ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, ये अभी हम इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। अब यहाँ से अब आपने खुद इसको आइटरेशंस को प्रोसीड करना है दोबारा से, वो जो फार्मूला है जर्नल मैंने अभी मेंशन किया है, आप इसको 4 टाइम्स मज़ीद करेंगे, और फिर जब y5 आपकी आइटरेशन आएगी, यहाँ पे y1 है और z1 है, आप निकालेंगे y5 एंड z5, तो वो जो आंसर होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और वाया दिस आर के मेथड, classical RK method for simultaneous differential equations. Okay, so please do the questions that I have already mentioned you in the previous lecture। वो जो बुक के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड हैं, उनको करें, प्रैक्टिस करें, and if you have any queries please tell me। Okay, thank you।